So last time we have discussed that how the current is applicable to the circuits and how the charges are playing very important role. So right now there comes a question that what makes these charges to flow in any circuit, or if the charges are flown through a wire, so how they are being flown away, or what is the deriving force that is actually making them move into a particular circuit or a current carrying wire. So you know what? Charges do not flow by themselves, just as the water flows. Or let me give you one example over here. So let's say I am considering two buckets of water, or maybe there is a source of water from which I am trying to derive a current. So if I try to get, let's say this is bucket number A and this is bucket number B, but now I have placed both the buckets on a very same level, right? So they are placed on the same level A and B. And if I am trying to connect at the bottom of the bucket A and I'm connecting a pipeline to the bottom of the bucket B. Yes, like that. So what do you think if obviously if the water in the A is coming at the level of the pore, और ये पानी इजीली किस कब तक फ्लो करेगा जब तक इस पानी के ऊपर कोई प्रेशर है, राइट? तो ये पानी फ्लो करके बी बकेट में चला जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब ये एक्चुअली पाइप के लेवल का हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे वाटर का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है। तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ हाइट सो दैट द वाटर कैन फ्लो। एंड वी ऑल नो कि हमारे घरों में जो वाटर टैंक्स होते हैं वो हम हमेशा ऊपर की तरफ या अपने रूफ की तरफ या आप अपने सबसे टॉप फ्लोर पे उसे प्लेस करते हैं, सो दैट वाटर कैन इजीली एक्सपीरियंस द ग्रेविटी, so that it can come down in your taps and all the pipelines, right? Similarly, now just imagine that there is a circuit, and in that circuit one terminal is positive and another terminal is negative. So just consider that there is a difference of the deriving force that will make the charge flow in a particular direction. Now I have just connected one wire and another one is battery. The charges will definitely, basically the electrons will definitely going to emerge from the negative side of the battery, and they will move, and they will definitely go on the other side of the battery, that is a positive terminal. Now just think about this, that if there is just like the water tanks, अगर इन दोनों को मैं नेगेटिव बना दूं या इन दोनों को मैं पॉजिटिव बना दूं, तो इधर कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्चुअली इनमें डिफरेंस कर पाए। जब यहाँ पे कोई डिफरेंस होता ही नहीं है तो चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा। तो इस चीज को, ये डिफरेंस लाने के लिए और इस तरीके की फोर्स को, सो दैट द फोर्स कैन डिराइव द चार्ज विद इन द सर्किट, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स यू नीड समथिंग और यू नीड energy so that you can easily derive that charge. The charge can easily flow from one point to another point. So let us say that there is a point P and there is a point Q, and there is one charge which is flown from the P point and coming to the Q point, right? So there must be a potential difference, but the potential difference comes at P and Q. No, the potential difference comes from the battery only, because तुम आप लोगों ने बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे कई बार सुना होगा कि 9 वोल्ट का बैटरी है, 1.5 वोल्ट का बैटरी है, स्पेशली द ड्राई सेल्स अगर हम बात करें। इसके अलावा बहुत सारी सेकेंडरी बैटरीज आती हैं, जैसे कि अगर मैं सेकेंडरी सेल्स की बात करूं तो सेकेंडरी सेल्स में मेरे पास सारे के सारे रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं, जैसे कि आपकी बहुत ही फेमस फोन की बैटरी होती है, दैट इज द लिथियम आयन बैटरी। तो जितने भी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनको हम ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं ताकि वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होके अपना इजीली उसको चार्ज कर दे। बट
There is not a question of alternating current or the direct current. There is a question that there is a potential difference. Okay, so as the topic suggests, the potential difference. तो ये डिफरेंस ऑब्वियसली किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आता है, और इधर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल. तो बस अब आपको ये समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट, and the work must be done to carry to carry a charge. It can be positive charge or it can be a negative charge. अभी हम कन्वेंशनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करें बिकॉज दे आर मोबाइल, लेकिन we need to think that the voltage is exactly W by Q. So just from the concept we are deriving this, the formula that W is equal, or I can say V is equal to W upon Q, right? So this W is nothing but the work done. But work is done for what? Work is done to carry a charge from the point P of the conductor to the Q point of the conductor. So this much of the work per unit charge will give you the idea of voltage. And it is very important, because when we talk about the voltage, the SI unit of voltage is 1 volt. And what is 1 volt? It is 1 joule per 1 coulomb. It's basically the unit of the work done, that is measured in joules, and the coulomb is the unit of charge again. So we can say that if we want to define the 1 volt or 1 volt, so we can say that if the electric potential difference, so mind it, electric potential difference, I'm not talking about only the potential, I'm talking about the potential difference. So electric potential difference between the two location is 1 volt when 1 coulomb of charge will gain 1 joule of potential energy. So this energy, or I can simply say that it has to do, or this kind, like there is a force which is deriving the current, which is deriving the charge from one place to another place, but that force has to do the work to carry out that 1 coulomb of charge. And of course, how much work will be done? 1 joule of work will be done. So to define 1 volt, I can say 1 joule of work will be done to carry out the charge of 1 coulomb. And yes, there is another name which is also known as joule per coulomb. So I can say the SI unit is volt, and of course we have again honored the scientist whose name is Volta, Alessandro Volta, and he derived the unit for potential difference, just like that. Okay, so far and so good. We have few, definitely we have the, so we have this particular thing. And yes, I have also put the images of ammeter and voltmeter. So we know that the ammeter is definitely the device which used to measure the current. And of course, I have already told you the SI unit of current is ampere. So I don't know whether it is written as 0 ampere or whatever you are deriving from it, that is 0 ampere. So 0 is representing the magnitude of the current, that is the null, and ampere is showcasing the unit of the current. Similarly, if I talk about the voltmeter, voltmeter is, if I talk about the measurement of voltage, so voltage can be taken on the voltmeter. It's a device that can be used to measure the voltage. And what is the voltage? Basically, it is the potential difference or the deriving force between the two terminals, that is positive and the negative. इतना हमें अब तक समझ में आ चुका है. सो सपोजिंगली वोल्ट मीटर में अगर ये 0 वोल्ट लिखा हुआ है तो आपको ये समझना है दैट 0 इज द मैग्नीट्यूड अगेन एंड वोल्ट इज द यूनिट. Again, one more thing, that ammeter is always connected in the series arrangement in a circuit, whereas voltmeter is connected in the parallel arrangement of the circuit. So if you people don't know that what is a series arrangement or a parallel arrangement, I will definitely going to explain when we will talk about the resistance. But those who have not performed Ohm's law yet, you need to understand that there is a fixed pattern in which we used to connect the different devices. Okay, so
Apart from that, I just want to go for few numericals right now. So I can say that if I talk about few numericals, that must be conceptual as well. So I have a question in front of you, that how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery. So you must be knowing that, by now we have done the two formulas, that I is equal to, let me also write that. तो अभी तक हमने दो formulas पढ़े हैं. I'm just writing here only. So I is equal to Q by T, that I have already told you, that current is the rate of transfer of charge per unit time, and yes, the voltage is the work done to carry out the charges from one point to another point. Always remember that whenever there is a talk about potential difference, you need to understand that the difference, I mean, वैसे भी इंग्लिश की लैंग्वेज में भी डिफरेंस का मतलब यही होता है कि हम किन्हीं की दो के बीच का हम कंपैरिजन या उनके दो के बीच की कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं. तो whenever you are hearing the word voltage difference, so always think about that there are 2 points in a conductor that we are talking about. और ऐसे आपको आगे आगे और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आप किस बारे में ये बात कर रहे हो, राइट. सो V is equals to W by Q. अभी तक हमने ये दो formulas पढ़े हैं, right? How much energy is given to each coulomb of charge passing through the 6-volt battery? So it's a very easy question that you need to apply, your concepts that we have learned. So we have just given you the formula, and we have just done the formula of V is equal to W by Q. और कभी भी जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी that always start from the very basic step. हाँ, बिल्कुल टाइम लगता है, दैट आई एम नॉट डिनाइंग, बट बिल्कुल बेसिक से उठाओगे तो शायद आगे जाके जब आप कोई भी कंसेप्ट यूज करोगे तो वो आपको बहुत जल्दी से आप यू कैन पिक इट अप एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग. दैट्स व्हाट आई फील कि वी वर्क अपॉन द concepts, it stays forever. So right now I have to derive, or I have to calculate how much energy, and as the like question suggests, हाउ मच एनर्जी, ऑब्वियसली वो वर्क डन होगा जो हमें जूल्स में निकालना है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है वो जूल्स में निकलती है, जो आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से बहुत बारी पढ़ चुके हो. तो इसी को बस मैं थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्म में इधर उधर चेंज कर दूंगी, एंड आई विल ट्राई टू राइट इट. W is equals to V multiplied by Q, right? So I can simply write it. Now, ईच कुलम्ब ऑफ चार्ज, ये भी मुझे गिवन है, तो इसका मतलब Q क्या हो गया, यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ. Q इज इक्वल टू 1 कूलम, एंड 6 वोल्ट का मतलब है कि वोल्टेज आपको दे रखा है, कि मतलब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच में. आपकी बैटरी 6 वोल्ट की है. So now I can simply go with the formula that 6 multiplied by 1 will give you 6 joules of energy. तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ. इसमें ही आपको ये पूछा है कि जो 1 कूलम का चार्ज था किसी भी सर्किट में, लेट्स से देयर इज अ सर्किट जिसमें एक बैटरी लगी हुई थी जो कि 6 वोल्ट की बैटरी थी, एंड लेट्स से कि मैंने इसके साथ कोई भी एक लोड रेजिस्टेंस को हम आउटपुट कहते हैं, तो मैं RL लिख रही हूँ इसके लिए. मैंने कुछ भी यहाँ पे आउटपुट ले रखा था, लेट्स जस्ट से दिस इज द आउटपुट. मुझे लाइट चाहिए तो बल्ब लगा दूंगी, मुझे विंड चाहिए तो मैं फैन लगा दूंगी, मुझे रोटेशन चाहिए तो मैं मोटर लगा दूंगी. इट कैन बी एनीथिंग. तो RL इज नथिंग बट द आउटपुट. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक स्विच लगा रही हूँ सिंपली, एंड आई एम कनेक्टिंग द स्विच एंड सिंपली कनेक्टिंग द वायर, राइट. सो कहने का मतलब है कि यहाँ से कहीं से 1 कूलम का चार्ज निकला था, एंड आई होप यू रिमेम्बर कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में और इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क होता है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 कूलम चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो बहुत सारे क्या नंबर है, you have to remember that. I mean, you don't have to remember that, but you have to derive it whenever the question comes. तो 1 कूलम में 6.85 into 10 raised to the power 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So we have to remember कि 1 कूलम चार्ज इतने सारे इलेक्ट्रॉन से बनता है. So like that, अब ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फ्लो करेगा, तो कितना वर्क डन है, कितनी एनर्जी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक डिराइविंग फोर्स होती है, बट हर किसी चीज को काम करने के लिए आई नीड एनर्जी, राइट. तो काम करने के लिए वर्क नीड्स टू बी डन, एंड यस इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ जूल. So to carry out 1 coulomb of charge in a circuit
from the 6 volt potential difference I need to derive that current, or I need to derive that charge with the energy of 6 joules, which is a very simple question that you have already done. अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो देयर कम्स अनदर क्वेश्चन. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द क्लास. एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230. पहली बात तो आप ना क्वेश्चन पढ़ना ठीक से सीखो, क्योंकि कई बच्चों का मैंने देखा है, एज पर माई एक्सपीरियंस, वो क्वेश्चन ही ठीक से क्रैक नहीं कर पाते. आंसर निकालना इज नॉट अ बिग डील, क्वेश्चन को समझना और उसमें क्या पूछा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरी क्या हैबिट है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं हमेशा जितनी भी सारी चीज़ें दी होती हैं ऑलरेडी, जो जैसे हम मैथ्स में करते हैं गिवन टू प्रूव वाला, तो आई ऑलवेज राइट व्हाट इज गिवन टू मी. फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक हीटर, तो यहाँ पे एक अगेन दिस इज ऑल्सो द लोड रेजिस्टेंस. इसको जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे तो आप इसको हम लोड रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, और इट्स अ डिवाइस दैट इज डिराइविंग द करंट फ्रॉम योर सर्किट, राइट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर मैंने लगा रखा है. इट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट्स मेन सप्लाई. तो मेन्स का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग, जिसका हम डायरेक्ट प्लग लगा देते हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट दैट वी आर डिराइविंग. तो उसका वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट. अ करंट ऑफ, तो एक बार मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे कि V है मेरे पास 230 वोल्ट्स. दूसरा मुझे तो रखा है यहाँ पे करंट दैट इज 8 एम्पियर. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखते ही पता चल जाएगा सिर्फ यूनिट से कि क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टिविटी है. अगर आपको यूनिट्स बहुत अच्छे से याद हैं एंड अगर आपने उनको डिफाइन ठीक से किया है, तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद द फॉर्मूलाज ऑल्सो. तो बी लाइक be very sure about using the formulas with proper symbols. Okay, अब आपको ये पूछा गया है how much charge flows around the circuit each second. और इसमें भी एक हिंट है, ए पार्ट हम कर रहे हैं, उसने बोला है कि हर एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा अराउंड द सर्किट. सो देर इज लाइक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आपको पहली बात तो पूछा क्या गया है, आपको पूछा है कितना चार्ज फ्लो करेगा. तो बहुत सिंपल सी डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे चार्ज निकालना है कि एग्जैक्टली कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ पे. उसके बाद वो बोल रहा है कि कितने सेकंड में, टाइम भी दे रखा है उसने, तो ईच सेकंड. देखो यहीं से ही आपको सब कुछ मिल जाता है. टी भी दे रखा है दैट इज 1 सेकेंड, राइट. मुझे क्या करना है, मुझे क्यू निकालना है. क्या मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिससे मैं सिंपली पुट करके क्यू निकाल सकती हूँ? मेरे पास क्यू के दो फॉर्मूला है सर. अभी हम सिर्फ इसलिए इतना इलाबोरेटेड वर्जन कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. जैसे आपको हैबिट हो जाती है कि अच्छा यही फॉर्मूला पुट करना है, दैट कम्स विद द प्रैक्टिस. तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, बिकॉज आई रिमेंबर दैट देर आर टू फॉर्मूलाज. ये मैंने पिछली स्लाइड में भी लिखे थे बट मैं फिर से लिख देती हूँ. दैट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास वोल्टेज का, वो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. यहाँ तक मुझे पता है. इधर से भी मैं क्यों निकाल सकती हूँ कि I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, और इधर से भी मैं क्यों निकाल सकती हूँ, यहाँ पे सिंपली W बाई V हो जाएगा, राइट. अब एक बात बताओ, जब मुझे यहाँ पे टाइम गिवन है, so why to go for the work done? I don't need this. So what I'll do, I'll simply use the first, I'll simply use the first one, and what it will go like that Q is equal to I into T. तो I है 8 एम्पियर और टाइम दे रखा है मुझे 1 सेकेंड. तो बड़ा आराम से मेरे पास 8 कूलम का चार्ज निकल गया. तो आपके पास Q आ जाता है 8 कूलम. यही तो पूछा था. क्वेश्चन नंबर बी में ही आपको ये पूछ रहा है दैट हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर ईच सेकेंड. अब यहाँ पे एनर्जी की बात हुई है. जैसे ही एनर्जी की बात आए तो आपको क्या ध्यान आता है, वर्क डन. बिकॉज एनर्जी और वर्क डन की यूनिट सेम होती है. मैं ये नहीं कह रही कि क्वांटिटी सेम है, मैं ये कह रही हूँ कि इन दोनों की यूनिट सेम है. तो वर्क डन का ऑब्वियसली आई कैन राइट, मुझे फॉर्मूला तो याद है ये वाला कि क्या होता है. तो आई कैन सिंपली राइट दैट V मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता था. तो यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है, क्या मुझे वोल्टेज दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, दैट इज 230. और क्यू मैंने अभी अभी निकाला है फर्स्ट पार्ट से, दैट इज 8. अब आपको सिंपल 23 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, और वट एवर यू फील लाइक. तो इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाता है 1840 जूल्स. So that is how you derive that how much energy is transferred to the heater each second. तो आपको इतनी इतनी एनर्जी मिली है हर एक सेकेंड पे. क्या ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमने सिंपल क्या निकाला था, हमने सिंपल वोल्टेज देखा था,
और इधर हमने दोनों फॉर्मूला यूज किए हैं, एक बारी हमने द चार्ज दैट आई हैड टू कैलकुलेट, एंड सेकेंडली उसी चार्ज की वैल्यू की हेल्प से मैंने यहाँ पे वर्क डन भी निकाला है, जो कि एनर्जी बता रहा है। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज आई मीन द लास्ट न्यूमेरिकल, राइट। तो लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें भी। सो एज पर योर नॉलेज गेन्ड इन दिस होल लेक्चर, I can say that which instrument, this is question number 3, and which instrument is used to measure the electric current. तो नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए I always use an ammeter। कभी भी आपसे ये पूछा जाता है एमीटर के बारे में, खुद से ही याद कर लिया करो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और अभी अभी मैंने बताया है, इसको हम सीरीज में लगाते हैं जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर। वैसे ये हमेशा जब भी आएगा तो एक नंबर में क्वेश्चन आएगा आपके पास, एमसीक्यू टाइप भी आ सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा होता है ताकि आपको ये याद रह जाए, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि ये एक बैटरी है लेट्स से। तो बैटरी को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी कनेक्ट करके मैंने कहाँ पे ले गई हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो सबसे पहले मुझे सर्किट की अपनी बैटरी बनानी होती है, दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज अ नेगेटिव टर्मिनल, एंड यस आई हैव टू टेक द वायर कनेक्शन। और यहाँ पे लेट्स से अगेन मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, आप कुछ भी लगा सकते हो, बल्ब भी लगा सकते हो, मोटर भी लगा सकते हो, लेकिन लाइक मुझे अभी कहने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो दिस इज नथिंग। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो ऑलवेज रिमेम्बर कि यहाँ पे मैंने एक आउटपुट ले रखा है, एंड आउटपुट में कुछ भी हो सकता है, एक बल्ब भी आ सकता है, एक मोटर भी आ सकती है, एनीथिंग कैन कम, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, दैट इज योर आउटपुट बेसिकली जो आपको चलाना है डिवाइस। फिर यहाँ पे मैंने एक अपनी की लगा दी है, लेट्स से उस की को मैंने क्लोज कर दिया है। आई होप यू रिमेम्बर कि हम दो तरीके से कीज बना सकते हैं, या तो आप ये वाला भी बना सकते हो, ये इस तरीके से आपकी की बनती है, दिस इज ओपन, और इस तरीके से भी हम ब्रैकेट में डाल के दिखा सकते हैं। ये मैंने दोनों ओपन बनाया है, या फिर मैं बोल सकती हूँ द स्विच इज ऑफ। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सबको पता होनी चाहिए। सो द स्विच इज ऑफ, यहाँ पे मैंने स्विच ऑन रखा है सो दैट द सर्किट कैन वर्क। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली सीरीज में लगाऊंगी, राइट। बट ये थोड़ा सा और आपको पता चलेगा कि एमीटर का पॉजिटिव जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। तो आई एम सिंपली ट्राइंग टू रिक्रिएट माई सर्किट, बिकॉज नाउ आई एम पुटिंग दी एमीटर। एमीटर को मैंने और कहीं नहीं लगाया, एमीटर को मैं लगाऊंगी बिल्कुल यहाँ पे। और अभी आपको कनेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर लेते। तो यहाँ पे मैं इस सर्कल को बना के लिख दूंगी ए स्टैंड्स फॉर एमीटर, और यहाँ पे एमीटर का पॉजिटिव ऑब्वियसली डिवाइस है तो इसके दो टर्मिनल्स होंगे, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट करंट में यूज कर रही हूँ। सो एमीटर का पॉजिटिव विल कनेक्टेड टू बैटरी का पॉजिटिव, और एमीटर के नेगेटिव से मैंने यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट कर दिया। आप चाहे तो पहले स्विच ले सकते हो, बाद में आरएल ले सकते हो, एज पर योर सर्किट्स डिमांड। तो हमेशा ध्यान रखिए। और अगर कभी भी जस्ट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर मैं यही सर्किट रिक्रिएट करूँ, तो कभी भी जब मुझे सपोजिंगली, अब मैंने यहाँ पे अपना आउटपुट ले लिया है, और यहाँ पे मैंने अपना एमीटर लगा रखा है, राइट। और यहाँ पे मैंने कहीं पे मैंने स्विच दे रखा है विच इज ऑन, उसको बस हम कनेक्ट कर देंगे। अब आप बोलोगे कि किस तरीके से लगाएंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसका वोल्टेज आप निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कोई बल्ब लगाया हुआ है, और बल्ब का वोल्टेज बेसिकली बल्ब कितनी वोल्टेज को यूटिलाइज कर रहा है, और बेसिकली उसमें से कितना करंट हम एक पर्टिकुलर सेकेंड के लिए निकाल पाएंगे या उससे पास करवा पाएंगे। दैट्स व्हाट अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको पैरेलल में लगाऊंगी। और पैरेलल में लगाने का क्या मतलब होता है कि मैं वहीं से ही इन दोनों के जो टर्मिनल है, मतलब यहाँ से एक कनेक्शन होगा और यहाँ से एक कनेक्शन होगा, तो इसको हम पैरेलल में लगाना कहते हैं, और एमीटर को हम उसे सीरीज में लगाना कहते हैं। बाकी ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जब हम रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज अ सीरीज कनेक्शन ऑफ एमीटर एंड दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ वोल्टमीटर। Okay, so I hope you like this video and like the lecture.
and we have done the complete topic of current and voltage. In the next class, we are going to discuss about resistance and the factors depending resistance, and of course the very important law, that is Ohm's law. So just for the time being, have a great time, and like the video if you really find it worthwhile. Thank you.